So initial value problem of the second order homogeneous differential equation, homogeneous linear differential equation, because we are deal throughout homogeneous second order homogeneous linear differential equation. So second order homogeneous linear differential equation is P is the function of x and Q is the function of x is equal to 0. This is differential equation. If this differential equation is given with initial condition, suppose y x naught equals to k naught and y dash x not equals to suppose k1. इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, ठीक है. सो इफ वी हैव सेकेंड ऑर्डर differential equation, then there are given two initial condition. If there is first order differential equation, then there is single initial condition. ध्यान रहे, if there are third order differential equation, then there are three initial condition. जितना ऑर्डर का differential equation होगा उतने ही conditions given होंगे. Then its general solution is इस फॉर्मेट का आएगा y equals to c1 y1 plus c2 y2, where c1 c2 are the arbitrary constant. c1 c2. So if we have second order linear homogeneous differential equation, then we have the two arbitrary constant. If we have first order differential equation, then we have single arbitrary constant. जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आते हैं, ये ध्यान रखना आप. इफ वी इम्पोजिंग इनिशियल कंडीशन ऑन द जनरल सोल्यूशन, ऑफ कोर्स ये जनरल सोल्यूशन, इसमें ऑन द जनरल सोल्यूशन we get, हमें क्या मिलेगा, we get particular solution, particular solution which is free from the arbitrary constant. Particular solution is free from the, ये constant से free होगा. For example, just एक example कर लेते हैं. सपोज y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0 है एंड इनिशियल कंडीशन दे दिया y0 इक्वल्स टू 3 एंड y डैश 0 इक्वल्स टू सपोज माइनस 0.5 है एंड इट्स जनरल सोल्यूशन भी गिवन है अभी, बिकॉज वी डोंट हैव द मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जनरल solution of this differential equation is given here. Y equals to, ये given है c1 cos x plus c2 sin x. तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो. दिस इज जनरल सोल्यूशन इंक्लूडिंग c1 and c2. Yeah, this is general solution involving c1 and c2. You can verify this by just putting the value of y in this differential equation. It satisfies this equation, 0 equal to 0 दे देगा. Now imposing the initial condition, we require first y derivative. So y dash equals to, this is minus c1 sin x plus c2 cos x. There are two constant number which is c1 and c2. So we require two equation for getting the value of c1 and c2. We require two equations. So we have two initial condition. So first initial condition क्या है, y0 equals to 3. So we are imposing this condition in first
इस जनरल इक्वेशन में, जनरल सोल्यूशन में. सो दिस इज 3 इक्वल्स टू C1. ओके, एंड सेकेंड है y dash 0 इज इक्वल टू माइनस 0.5. दिस इम्पोज ऑन द सेकेंड. सो दिस इज माइनस 0.5 इज इक्वल टू C2. cos 0 की वैल्यू 1 होगी, sin 0 की वैल्यू 0. सो हम ये कर रहे हैं. दियर फॉर y इक्वल्स टू C1 की वैल्यू हमारी 3 आई, 3 cos x, एंड C2 की वैल्यू माइनस 0.5 है, sin x. दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन. इसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लगाएंगे. तो जनरल सोल्यूशन ऑलवेज इस फॉर्म में होगा C1 C2, and particular solution are free from the constants. तो कुछ definitions है यहाँ पे. ये तो just solution था. Linearly dependent और linearly independent. आप linear algebra में कर चुके, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. Linearly dependent पहले हम करेंगे. दो फंक्शन linearly dependent कब होंगे? इसको मैं शॉर्ट में LD कहूँगा, आप समझ लेना. लीनियरली डिपेंडेंट. टू फंक्शंस y1 एंड y2 आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट. ये कब होंगे? ऑन सम इंटरवल, सम ऑन इंटरवल. किसी इंटरवल में पूछेगा वो. फंक्शन कह रहा है तो किसी इंटरवल में ही पूछेगा. दिस इज कॉल्ड, this y1 and y2 are called linearly dependent if k1 constant k1 y1 y2 x होंगे, ये x के फंक्शन होंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस k2 y2 x is equal to 0. then k1 and K2 नॉट बोथ 0. दोनों 0 नहीं होंगे. या मैं ये भी कह सकता हूँ एटलीस्ट K1 एंड K2 नॉन 0. if this, then K1 and K2 not both 0. दैट इज इट. इसका मतलब ये है कि या तो K1 नॉन ज़ीरो होगा या K2 नॉन ज़ीरो होगा, या दोनों नॉन ज़ीरो होंगे. या हम ये भी कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ K1 एंड K2 इज नॉन ज़ीरो. तो लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए हम ये देखेंगे, एक इक्वेशन लिख देंगे इस टाइप से, विच सेटिस्फाई द इक्वल टू 0 but K1 must be non-zero or K2 must be non-zero or both are non-zero. एग्जाम्पल करेंगे हम, फिर समझ में आएगा ही. ये कैसे हो रहा है देखो. since K1 y1 plus K2 y2 equals to 0. suppose let K1 is non-zero. अगर मैंने K1 नॉन ज़ीरो मान लिया, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है अगर ये LD होना है y1 y2 को, तो दिखेगा यहाँ पे LD भी दिखेगा, लीनियरली डिपेंडेंट. इफ K1 इज नॉन ज़ीरो, सो K1 y1 इक्वल्स टू माइनस K2 y2. अब मैं K1 से डिवाइड कर सकता हूँ बिकॉज K1 इज नॉन ज़ीरो. तो मैं ये K1 यहाँ ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ पे K1 कर देता हूँ. इट इज़ वैलिड बिकॉज K1 इज़ नॉन ज़ीरो. अगर K1 ज़ीरो हो जाता तो हम ये नहीं लिख सकते. सो y1 इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट, सपोज K मान लिया, y2 वेयर K इज माइनस K2 अपॉन K1. ये नया कांस्टेंट है K. तो y1 इक्वल्स टू K ऑफ y2. तो ये कैसा है? y1 is equal to some scalar multiple of y2, या y1 equals to some constant multiple of y2. So we can say y1 is depending on y2
और वी कैन से y2 इज डिपेंडिंग ऑन y1। एक इस पे डिपेंड है तो वो इस पे डिपेंड होगा, ठीक है। y1 इज डिपेंडिंग ऑन y2 बिकॉज y1 comes by just multiplying k with y2। तो ये y1 y2 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं हम इसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या यहाँ से क्या एक रिजल्ट बनेगा y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू k। इफ रेशियो ऑफ y1 and y2 is constant, then we say y1 and y2 are linearly dependent। तो एक हमारे पास यहाँ से रिजल्ट बना। एंड ये तो किस केस में था, k1 0 के लिए था। if let k2 is non-zero, this is for k1 is non-zero, this is k2 non-zero। if k2 is non-zero, then we can write from equation 1 मैं इसको k2 से डिवाइड कर सकता हूँ बिकॉज k2 इज नॉन जीरो। तो मैं ये लिख सकता हूँ y2 इज इक्वल टू माइनस k1 अपॉन k2 y1। सो y2 इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट k डैश ले लिया y1, of course where this k dash is new constant which is equal to minus k1 upon k2। so यहाँ पे भी similarly y2, आप देखो y2 is depending on y1 because this is k dash, so y2 upon y1 is equal to k dash। तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ if ratio of y2 और y1 is constant then they are linearly dependent। और ये भी कह सकते हैं if y1 and y2 are proportional, है ना, proportional, y1 and y2 are proportional, then we can say they are linearly dependent। linearly dependent क्या होता है, जब दो ही फंक्शन है, हम चार फंक्शन नहीं कर रहे, ओनली 2 फंक्शन के लिए हो रहा है, 2 ही फंक्शन के लिए करना है हमें, बस उनका रेशियो देखना है। इफ देयर रेशियो कम्स कांस्टेंट देन दे आर डायरेक्टली यू कैन से दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो वन मेथड इज लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने का क्या है, y1 अपॉन y2 कर दो, कांस्टेंट आए तो आप चेक करेंगे। अगर ये नहीं यूज करना, ये मेथड यूज नहीं करना है तो जस्ट गो थ्रू दिस वन। आप लिखो k1 y1 प्लस k2 y2, शो कर दो, बता दो कंडीशन लगा के k1 इज नॉन जीरो या k2 इज नॉन जीरो, देन डन। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट मेथड, ये जो शो करना है दिस। आप रेशियो दिखा सम कांस्टेंट, कुछ भी आए कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन इट मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। सिमिलरली ये इसके लिए बस रेशियो देखो, 2.1 में सारे प्रॉब्लम यही है आपके, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना, हम वही करेंगे। नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको मैं कहूँगा LI। लीनियरली डिपेंडेंट वी नो if ratio is constant then the linearly dependent, if not linearly dependent, if not linearly dependent then this is called linearly independent। मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ which is not linearly dependent called linearly independent। जो linearly dependent नहीं होगा वो linearly independent होगा। अब कंफर्म हो गया। अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है, अगर डिपेंडेंट है तो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, अगर डिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं आ रहा है इट मीन्स वो LDV नहीं होगा, इट मीन्स वो क्या होगा, LI होगा। यहाँ से अब कंफर्म हुआ। एक स्टेटमेंट होता है P स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है Q को, नॉट Q इम्प्लाई करता है नॉट P को। ये स्टेटमेंट के बारे में पता है, दिस इज कॉल्ड द निगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड कहते हैं इसे। जब आप प्रूफ करते हो किसी थ्योरम्स को, इफ P स्टेटमेंट ट्रू देन Q इज ट्रू, देन
मैं ये कह सकता हूँ इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ देखो, अगर एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मैंने शो किया y1 अपॉन y2 इज कांस्टेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो मैंने शो किया y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ y1 upon y2 is not constant, then we can say this is not LD, and which are not LD, they are Li। ठीक है, जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दैट इज, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, दैट इज टू फंक्शन y1 and y2 are Li, linearly independent on some interval, of course, on some interval I, if k1 y1 plus k2 y2 is equal to 0, imply k1 बराबर 0 एंड k2 इक्वल्स टू 0। उसमें क्या हो रहा था, LD में एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो हो रहा था, बट ये तभी हो सकता है Li जब हम अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इट मीन्स द k1 भी 0 होना चाहिए, k2 भी 0 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सपोज एक मैंने y1 ले लिया, सपोज ये है मैंने ले लिया 2x, एंड y2 ले लिया x। So just checking whether this is Li or LD, simple है example। So मैंने क्या किया, y1 upon y2 किया, y1 is 2x upon x, x cancel out, 2 आया। ठीक है, this is constant, so we can say directly here y1 and y2 are LD। अब हम इसके डेफिनेशन के थ्रू नहीं करेंगे, इसी के थ्रू करना है, आपको यही याद रखना है। LD है तो ये तो LD भी होगा ऑफकोर्स। अगर y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू k तो वो LD भी होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखना LD अगर है, ये तो है ही, मैंने डेफिनेशन के थ्रू किया। अगर ये हो रहा है इट मीन्स LD भी होगा, क्योंकि देखो y1 सपोज ये गिवन है y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू k, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू k y2, उल्टा जाएंगे जस्ट, सो y1 माइनस k y2 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो y1 प्लस k y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वट एवर द वैल्यू ऑफ माइनस के, हो सकता है माइनस के 0 भी हो जाए, y का जो कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज 1 होगा, y का जो y1 का जो कोफिशिएंट होगा विच इज ऑलवेज 1, विच इज नॉन जीरो। सो इफ दिस इज नॉन जीरो बट दिस कॉम्बिनेशन इज 0, then the y1 and y2 are always LD by the definition। There must be k1 and k2, at least one of the k1 and k2 are non-zero। so यहाँ पे ऑलरेडी 1 इज नॉन जीरो आ चुका है। अगर ये 1 नॉन जीरो है इट मीन्स y1 एंड y2 आर LD। तो ये जो केस मैंने कराया है यहाँ पे LD, y1 एंड y2 आर LD if and only if this one, if this is not LD or if this is not equal to k then not LD। okay, if not LD then this is not equal to k, ये भी हो सकता है। अब आपके पास केवल ये डेफिनेशन है आपके पास y1 अपॉन y2 वाला, तो उसी को यूज करके आपको करना है 1 to 13 2.1 में। देख लो हमें क्वेश्चन एक बार।
अच्छा यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 15 to 19 में वेरीफाई द गिवन फंक्शन आर एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड फॉर्म ए बेसिस, अभी बेसिस भी बताऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ओडी। जो गिवन है यहाँ पे ये cos 2.5x sin 2.5x, इनको वेरीफाई करना है, हमें बताना है कि भाई ये एल आई है। आप क्या करो, साइन 2.5 अपॉन कॉस 2.5x या कॉस 2.5x अपॉन साइन 2.5x लिखो, वो कॉट 2.5x आएगा विच इज़ नॉन ज़ीरो किसी इंटरवल में, सबके लिए तो ज़ीरो नहीं है, वो थ्रू आउट ज़ीरो नहीं है। सो दिस इज एल आई, ज़ीरो भी नहीं है, वो कांस्टेंट भी नहीं है, बिकॉज x इंक्लूड है, कॉट 2.5x में x इन्वॉल्व कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, सो दिस कैन नॉट बी एल डी, हेंस एल आई। सिमिलरली आप इसमें भी देख लो, एल आई बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये एल आई चेक करने के लिए है, ठीक है। अभी दूसरा बेसिस हम कहेंगे, फिर बेसिस क्या होता है, पूरा लीनियर अलजेब्रा का ही पोर्शन है। रिडक्शन अभी करेंगे हम, पहले एल आई एल डी कर लेते हैं, एल आई और एल डी, यही रूल है, ठीक है, रूल आपको यही याद रखना है कब एल आई और एल डी होगा है। y1 and y2 are LD linearly dependent if and only if y1 upon y2 is equal to some constant k। constant k जो होगा कुछ भी हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्री फ्रॉम दी x होगा, सम कांस्टेंट k। अब इतना सा आपको ध्यान हो गया ना, तो आप कह सकते हो इफ y1 and y2 is non k then y1 and y2 are not LD। मैं ये भी कह सकता हूँ y1 and y2 are Li if and only if, सेम सिंबल और इससे डिनोट कर सकते हैं, y1 upon y2 not equal to k constant। नाउ बेसिस, वेक्टर स्पेस में आपने पढ़ा होगा बेसिस, अगर वेक्टर स्पेस के थ्रू समझे तो बहुत वाइडली चला जाएगा। उसमें क्या होता है, एल आई सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस विच स्पैन टू वेक्टर स्पेस, जो उसको स्पैन कर दें। अगर उसमें देखो आप, एस सबसेट है बी का, वेक्टर स्पेस है, एस एल आई होना चाहिए नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है स्पैन ऑफ एस विल बी वी, तो हम इसको एस को कहते हैं बेसिस। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है यहाँ पे, हमें ये कहना है अगर टू एल आई, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0। सो इट्स जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इज क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज दिस वन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू भी आप ये कर सकते हो, और y1 y2 सेपरेटली भी इसके सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप चेक करो y1 एंड y2 को, ये इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं इसको कब बेसिस कहूँगा, डायरेक्ट अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, देन छोड़ो, y1 y2 इज बेसिस, सीधे लिख दो, ठीक, y1 और y2 इज बेसिस बिकॉज बोथ आर Li। ये ध्यान रहे, वेयर y1 upon y2 कैन नॉट बी इक्वल टू k। ये y1 upon y2 कैन नॉट बी इक्वल टू k का मतलब क्या हुआ, y1 एंड y2 आर Li। ये डायरेक्ट ऐसे लिख लो आप बेसिस, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मत लिखो। जस्ट क्या करो, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करो, या अगर इसने गिवन है, अगर इसने दे रखा है
y1 एंड y2 सॉल्यूशन दे रखा है इसके, तो y1 और y2 बस आप ये चेक करो कि वो li है या नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जो सेट बनेगा कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड बेसिस, सिंपली। क्लियर है? सेकेंड ऑर्डर में बस दो सोल्यूशन देखना है, दोनों सोल्यूशन अगर li है, गिवन सोल्यूशन अगर li है, सो इट मीन्स इट फॉर्म ए बेसिस। तो बेसिस के लिए रूल लिख लेते हैं हम, y1 and y2 are solution of y डबल डैश प्लस pxy। देखो हम थ्रू आउट इसी इक्वेशन को डील कर रहे हैं, तो बेसिस भी इसी का बताना है। y1 and y2 are solutions of this differential equation, then y1 y2 ब्रैकेट में लिखना है, y1 y2 is basis if y1 and y2 are linearly independent, so y1 upon y2 is not equal to k। ये शो करना है। तो उसी अगर क्वेश्चन में आप देखो, एक क्वेश्चन था जिसमें y इज इक्वल टू cos, एक दो फंक्शन दिए थे, सपोज y1 इक्वल्स टू cos 2.5x एंड y2 इक्वल्स टू sin 2.5x। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे, आप देख सकते हो। क्या ये बेसिस बनाएगा, वो पूछता है क्या y1 y2 बेसिस होंगे, तो जस्ट डू y1 अपॉन y2 cos 2.5x अपॉन sin 2.5x which is cot 2.5x which is not equal to 0 in some interval, जो भी इंटरवल दिया होगा i। देखो x के डिफरेंट वैल्यू पे कॉट की डिफरेंट वैल्यू आएगी, हो सकता है कहीं पे 0 भी आए, बट दिस इज नॉट थ्रू आउट 0 तो नहीं है। या 0 क्यों कहूँ मैं, इसको कांस्टेंट कहता हूँ, ठीक है। थ्रू आउट कोई कांस्टेंट तो नहीं देगा। कॉट का अगर आप ग्राफ बना लो, अभी उसमें प्लॉट कर सकते हो आप, आपके पास मैथमेटिक है, तो वो ऑलवेज कांस्टेंट तो नहीं आएगा, x वेरी करेगा, तो ये cot 2.5x का वैल्यू भी वेरी करेगा। सो हम ये कह सकते हैं y1 y2 इज बेसिस, ठीक है। ये y1 y2 बेसिस होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे गिवन ही है, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर के लिए हो रहा है। ये 15 to 19 ईजिली हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। वैसे मैं एक बस बता दे रहा हूँ, हिंट्स देता हूँ यहाँ पे। y डबल डैश प्लस y डैश इसे रिड्यूस करना है फर्स्ट ऑर्डर में, तो y डैश इज इक्वल टू u पुट कर देना, तो ये क्या होगा u डैश प्लस u इक्वल्स टू 0, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम करना, y डैश ये भी सेम है, ये यहाँ पे गिवन दे रखा है, इसको पुट करके देखना आप, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही करना है, y डैश इज इक्वल टू u, एंड सिमिलरली इसमें भी y डैश इज इक्वल टू u, इसमें गिवन है ये इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू, ये x क्यूब रख के चेक करना, और इसमें भी आपको y डैश इज इक्वल टू u मानना है। 3 to 10 अगर हो पाए तो 3 to 10, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कल, और 15 to 19 ये तो करना ही है, 15 to 19 करना है, ठीक है। ये देखो, वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज द इंडिपेंडेंट फॉर्म करना है। फंक्शन क्या है हमारे, cos 2x, अभी ये किया मैंने, आप ये करोगे, ये दोनों, फिर ये दोनों, ये दोनों, ये, देन एंड फॉर्म ए बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन ODE। अगर li है तो जस्ट li दिखा दिया, इफ दे आर li देन दे फॉर्म ए बेसिस, रीजन देना है दे आर li, सिंस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हेंस दे आर बेसिस। Then solve the initial value problem. So its general solution, if this is the solution of this, this one is solution of this,
देन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्लीज यहाँ पे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं है अभी, वी डोंट हैव एनी मेथड फॉर सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें जस्ट इसको शो किया इसका सोल्यूशन है, इसको भी शो किया इसका सोल्यूशन है, देन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन इज solution of this, then impose this initial condition, okay, you will get solution of initial value problem। Similarly ये अगर ये भी solution है, ये भी solution है, तो C1 this plus C2 this is the solution of this, then you can solve। Similarly they all, तो 15 से 19 कर लेना और 3 to 10 कर लेना, नहीं तो मैं कर दूंगा ये।